Hello, everybody. Welcome to EduTap, and also welcome to another session of the Success Story series that is currently going on for the recruitment of NABARD Grade A for the year of 2023. So, we have one such topper with us, Mr. Arun, who has cleared this particular attempt in his, it was his very first attempt, and in fact, he started his preparation after the notification. But why? This is the major question, right? So, all these things we are going to discuss, but I really want to say to everybody, right? We are living at a time when the competition in these competitive examination, it's very, very high, right? So at that moment, I would not recommend ki at for the very first time only go for multiple examination. Definitely prioritize the one that you want to. But after a while, if you feel like, you're not getting the desired results, you might search for options. And in that case, we here at EduTap, we always say always go for such examination, which are the syllabus of which coincides with your main goal. And NABARD is one such examination if you're preparing for banking exams or SSC exam. And in fact, even if you're preparing for UPSC, you will find some of the syllabus coinciding, and definitely that helps to give you the result. And we have one such live example with us, Mr. Arun. He has his competitive journey is very enriching and interesting. He started preparing for UPSC. He has written two mains also. He has given UPSC his state PCS examination also, and in fact he bagged a government job as well in his state. But after that he wanted to explore more, and definitely NABARD is one such great option. And because he had background of UPSC, it helped him during the NABARD examination. So now what are the things? So if you already have background in other exams and you think that you have created a good base in it, definitely now specific for NABARD, what things you have to keep in mind. This is what we are going to understand in today's session. So first, I want to welcome Mr. Arun on our platform. Mr. Arun, welcome to EduTap, and heartiest congratulations on your big win. Thank you, ma'am. Thank you so much for the opportunity, and thank you for your wishes. Right. So starting off with I would really want to ask that you already had the job. You are currently working as assistant registrar in the cooperative society, but then also like what made you prepare for NABARD examination, or like what motivated you, or why do you think NABARD seems to be a comparatively better option in terms of learning and having new experiences than the job that you're currently doing? Ma'am, definitely I have a decent job at present. I'm serving as assistant registrar, cooperative societies in Jammu and Kashmir only. But NABARD as an organization is already known to me. But after coming to this job at my present job, and I came to know about the actual working of NABARD. And it is actually very much aligned with cooperatives. And I feel attracted towards the initiatives of NABARD, for example, the computerization, the grain storage, and also inspired by the work of DDM. And that is the district development manager of NABARD. That's why I thought of giving an attempt to the exam. Right. All right. So, you said that you started preparing for this examination around the notification, like it was just 10 days Yes. before that you started of the preparation, right? So, what, first of all, like you had a background of UPSC, right? So, but there are some subjects, for example, agriculture and rural development. Now, this is very specific to NABARD examination. Apart from that, the quant reasoning English, it does not have much of the weightage in UPSC, but here it is. And very Yes. important is that the type of current affair that is asked in UPSC are very different. There, the analytical sort of questions are there, but it is in NABARD, it's very data specific things that are asked. Statistical information is asked a lot, right? So we will understand one by one the sources you referred for phase one. So let's start off with quant reasoning and English. Like, what do you think that if somebody have a background in other competitive examination, would they have to still put much of the efforts, or there are specific things that need to consider as it's just a qualifying subject? Ma'am, for the non-merit section, I use the free resources available on the internet, for example, on YouTube and various Telegram channels I followed. And for quantum reasoning, I did it from the VD Sir's classes, and also to mention that for quantum reasoning, I followed a strategy to do only limited chapters. For example, for quant, Okay. I did only the quadratic equation, number series, percentage, average, and ratio proportion. That's all for quant. And then for Right. So, reasoning, yeah, how did you decide that okay, these were the chapters I have to do? मैम मुझे Means, how लगा did एक्चुअली you select it? हाँ मेरे को प्रीवियस ईयर पेपर जब देखे लाइक मेमोरी बेस्ड जो पेपर आते हैं
So from there, I took a hint and decided to prepare on the same path. राइट. And सो same for this. इफ आई हैव टू आस्क, लाइक जब मैंने आपने प्रीवियस ईयर जब आपने एनालाइज करा, सो दो चीज है. एक तो चीज है कि आइदर यू फाउंड दैट ओके द फ्रीक्वेंसी और द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड फ्रॉम दीस चैप्टर्स आर वेरी हाई. आइदर दिस कैन बी द कंसिडरेशन. अनदर कैन बी दैट दीज आर द चैप्टर्स दैट सीम डूएबल, right? Although the number of questions are not that much, but these seems doable, let me do that. So which one of the option did you prefer, or was it the mixture of both? मैम एक्चुअली इट वाज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, क्यों मैंने जब प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया, मैम प्रीवियस पेपर जो आता है उसमें देखा कि हर पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ ही रहा है, ठीक है, Hmm. और सेम विद मिसिंग नंबर या रॉन्ग नंबर सीरीज आ रहा है, एंड देन Hmm. डीआई. और डीआई आपका बेसिस, उसका बेसिस रहता ही है एवरेज, परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन. सो अगर आप ये सब चैप्टर कर लें तो यू विल बी एबल टू सॉल्व लाइक सेवन अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस इजीली. सो Right. इट वाज अ गुड नंबर. Right. All right. So for quant reasoning in English, it is very important to the aspirants who might not have started preparing specifically for such examination, that you can go for selective questions, because anyway ये section जो है नॉन मेरिट होता है और इतनी हाई कभी मार्क्स जाते नहीं है कि आप कभी ये सेक्शनल कट ऑफ 7 to 8 मार्क्स अगर आप ला रहे हो तो आप क्लियर ना कर पाओ. राइट. सो दैट वाज फॉर क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश. बट अगर डिसीजन मेकिंग की बात करें, आपने जैसे बाकी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करा है, बट डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज आर ऑल्सो नॉट दैट मच कॉमन in other examination. So for यस. that, did you have any sources referred, or like maybe you had prepared them earlier? Ma'am, computer for computer, I prepared basic of the computers and then practiced the MCQs based on internet, like available on the internet. And for Hmm. decision making same, मैंने किसी सोर्स से लाइक एक कोर्स सब्सक्राइब किया था, वहाँ का एक Hmm. शॉर्ट वो मटेरियल पढ़ा था, एंड आफ्टर दैट सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करे थे, और उसी से मेरे को लगा ही हो गया था. एंड फॉर डिसीजन मेक वन थिंग कि एक बहुत हाइप क्रिएट करी गई है डिसीजन मेकिंग के लिए. हाँ, थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, बट अगर आप उसको अपनी रीजनिंग के साथ करोगे ना, कॉमन सेंस के साथ, तो एटलीस्ट कट ऑफ तो क्लियर कर ही लोगे. तो ये मेरा व्यू है इसके ऊपर. Right, right, true. कि कुछ theoretical question definitely there are where for that you might require theoretical knowledge, but not all 10 to 10 questions are like that only. There will be 2 to 3 questions where if you some use some logic, you might be able to do that. But definitely, I would not recommend, or even sir is not recommending कि आप बिना preparation के जाओ. Sir also he did some MCQs because that gave him an idea that what sort of questions are there or what stimulus can be given. So at least if you are not preparing wholly the subject, but at least do previous year questions or some MCQs, that will help you to have an idea that what this subject is all about. All right. So sir, for this was for the non-merit section, जहाँ पे you focused more on doing the MCQs to get an Yes. idea. But talking about now the merit section, and there, as I said before, that definitely you have some enriching background for competitive examination, and you, because you have cleared also, so definitely you have good command over there. But when we talk about the sort of questions that are asked in Nawar, they are very different. Like they are very specific, one-liners and direct and data specific. So did you have to change some approach when you switched from the previous competitive examination to this one, or there is still some similarities that can be matched and that can help the aspirants who are currently from that competitive examination background to prepare for NABARD? मैम डेफिनेटली एक थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन तो फील होता है, बिकॉज यूपीएससी में जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल द करंट अफेयर बेस्ड, स्कीम्स बेस्ड, या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो वो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ही बताते हैं, एंड इट्स Correct. एप्लीकेशन. बट इन नाबार्ड टाइप ऑफ एग्जाम यहाँ पे फैक्चुअल और डेटा बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. एग्जैक्ट Hmm. नंबर पूछे जाएंगे, ईयर पूछा जाएगा, या ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं जो कि आपको एक तरह से क्रैम करनी पड़ती है. Hmm. सो हाँ, बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है, आपको अडेप्ट करना पड़ता है. बट मैंने जो किया था, लाइक फॉर एग्जांपल जीए के लिए, Hmm. तो मैंने 2 या 3 महीने के लास्ट मंथ्स के करंट अफेयर पढ़े थे फ्रॉम अड्डा, और उसी को रिवाइज किया था अगेन एंड अगेन, और बहुत सारे मॉक दिए थे. बिकॉज इसमें ऐसा है ना कि आपको जितना नॉलेज मिले उतना कम है, एंड True. कहाँ से क्या चीज़ आ जाए, बिकॉज एक तो क्वेश्चन भी सिर्फ 20 है, एंड यू नेवर नो क्या आ जाए. सो Hmm. दैट वाज अ स्ट्रेटजी फॉर जीए पार्ट. Right. Most of the aspirants, what they do, they go for multiple sources because it's like maybe one source can't suffice everything that has been asked in the examination. But what was your thought process, or even if you had that particular, mind somewhere कि यार मुझे भी जाना चाहिए, तो उसको आपने रोका कैसे? That no, I should stick to just one syllabus, that one source that will help me to have better results. बिल्कुल मैम, हर स्टूडेंट के साथ होता है, हर एस्पायरेंट के साथ होता है कि आप एक सोर्स कर रहे हो एंड यू फील द फोमो ऑफ लाइक मिसिंग द, कि वो कर लूँ, Hmm. शायद वहाँ से कुछ आ जाए, वो मिस हो जाएगा. एंड
देन इट नेवर एंड्स. वन थिंग इज दैट ये कभी भी खत्म नहीं होगा. बट हाँ, आपको खुद पे बिलीव रखना है और एक लिमिटेड सोर्स लेके उसको रिवाइज करते रहना है. और हाँ ठीक है, आप 100% नहीं कर सकोगे, बट एग्जाम में आपको 100% स्कोर करना भी नहीं है. True. ठीक है, तो 70-80% आपका हो रहा है तो यू आर गुड टू गो. Right, true. And for ESI also, like you referred to the same कि आपने 3 months magazine कर ली, या ESI में you had some additional efforts that you put. हम ईएसआई में एक्चुअली यूपीएससी प्रिपरेशन हेल्प मी अलॉट. उसमें Hmm. क्या हुआ कि मुझे जस्ट अपने जो कॉन्सेप्ट थे उसे ब्रश अप करने थे, लाइक फॉर इन्फ्लेशन, एमएसपी, सीबीडीसी एंड ऑल दैट. तो वो Hmm. थोड़ा बहुत ब्रश अप करने के बाद मैंने सारा फोकस सिर्फ करंट अफेयर के ऊपर ही रखा था ईएसआई पोर्शन के लिए. And for that, I used to like go for PIB compilations of crack grade B, and then the videos made by EduTap on various schemes and the finance related news. For Hmm. example, the UCB amendments, its management and classification. तो वो एक मिक्स सोर्स रहा मेरे लिए, बट मेजर फोकस मेरा करंट अफेयर पे ही था फॉर ईएसआई पार्ट. All right. And if we talk about ARD, because अभी क्या हुआ ARD में we have more of the theoretical questions that are asked in examination, and but you must have read some of the agriculture portion in your previous preparation, but ये थोड़ा ज़्यादा core agriculture and rural development है. तो for that, did you also for ARD you went for specific chapters, or because you knew that here the theory is asked more, so you went through everything because you started preparing after notification, like that's a major thing that is there consideration point. तो इसके लिए आपने एआरडी के लिए क्या आपने स्ट्रैटेजी सोची? मैम, ARD is the most feared part of this exam. And I choose to read only say single source from a course I subscribed, that is Clarity for sure. और मैंने उसके ही नोट्स पढ़े थे थ्रू द एग्जाम का, जितना भी 3 फेजेस निकले मेरे. और हाँ, स्टार्टिंग में मैंने एक थॉरो स्टडी किया पूरे सिलेबस का, ठीक है, बिकॉज दैट वाज नीडेड. मेरे को लगा कि ये ज़रूरी है, एक बार मैं पहले समझ लूँ सिलेबस क्या है. और उसके बाद फिर मेरे को लगा कि जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं उन पे फोकस किया. बट फर्स्ट मैंने पूरे सिलेबस का स्टडी किया था, सेम सेम नोट से अगेन एंड अगेन उनको रिवाइज करके. एंड उसके बाद फिर मैं स्पेसिफिक्स पे आ गया था अकॉर्डिंग टू द नीड, फॉर एग्जांपल फॉर प्रीलिम, फॉर मेंस एंड फॉर इंटरव्यू. Right, true. So that was for phase one, and for that also, did you give more and more mock tests? Like overall mock test भी आपने काफी दिए, या individual section wise the questions that you can get आपने सिर्फ वही करा? मैं मॉक टेस्ट फेज वन में काफ़ी ज़्यादा दिए थे. मुझे याद भी नहीं है, हर सोर्स से दिए थे, हर इंस्टीट्यूट के दिए थे जहाँ से जो Hmm. अवेलेबल था. बिकॉज ये ऐसा टाइम होता है ना, आपको टेस्ट करने का होता है कि आप खुद True. को इवेलुएट करो, आप किस चीज़ में लैग कर रहे हो. या फिर कभी ऐसा भी होता है ना, इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग काफ़ी काम आती है. अगर आपने Hmm. कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है और आप मॉक में दे रहे हो, तो वो आपके नॉलेज ही ऐड करता है. और वन थिंग True. कि मैंने इसमें ना शॉर्ट नोट्स बना रखे थे ऑलरेडी ARD के जितने भी मेरा मटेरियल था, ताकि वो लास्ट मिनट में रिवीजन भी हो पाए. और कुछ फैक्चुअल डेटा इसमें है, जैसे कि नंबर ऑफ डेज, द एग काउंट एंड ऑल दैट थिंग, Hmm. केजीज कितना है, तो वो सब काफी रटने रटने के लिए काफी काम आ गया लास्ट मोमेंट पे. राइट. तो अब ये सब हम जो भी बात कर रहे हैं, लाइक यू सेड यू लर्न बिकॉज क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश वाज नॉट समथिंग दैट यू हैड इन योर प्रीवियस प्रिपरेशन. एआरडी वाज समथिंग न्यू. करंट अफेयर you would have to switch from that analytical to here. All that you are यस. doing with job, right? So first of यस. all, how did, like, what did your schedule, daily schedule, it look like? Where did you adjusted everything over there? And along with that, didn't you, at times you had this thought that I'm already doing well in my job, in my career, why am I, sitting again, coming at home, sitting again and studying, learning and forgetting the data, and for, like, why am I doing so? Did you have ever thoughts? And please also share the schedule as well. मैम, शेड्यूल वाज लाइक द टिपिकल गवर्नमेंट शेड्यूल, लाइक 10 to 4:30. एंड अभी तो काफ़ी गवर्नमेंट के काम्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं, बिकॉज ऐसा सिनेरियो नहीं है अब. जैसे पहला एक थॉट प्रोसेस चलता था, तो अभी वीसीज होती हैं रात को 5 बजे, शाम को 5 बजे भी होती है, इमरजेंसी में तो रात को भी होती है. तो क्या दैट दैट वाज अ डिफरेंट थिंग. क्या हुआ कि उसमें मतलब कि मैंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ी नहीं थी, लाइक रिज्यूम ही करना था मुझे. ऐसा Hmm. नहीं है कि मैंने कोई फुल स्टॉप लगा दिया था. अभी मैं प्रोसेस में था, बस आई वाज सर्चिंग फॉर गुड एग्जाम्स फॉर एन अपग्रेड, Hmm. ऑब्वियसली. Hmm. तो यूपीएससी का लास्ट ईयर मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया था, बिकॉज मैं थोड़ा बिजी था अपनी जॉब में, तो टाइम नहीं दे पाया. सो दिस एग्जाम वाज कमिंग एंड आई थॉट इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी, तो आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस. एंड टाइम निकालने की बात है, टाइम मैनेजमेंट की, तो मैं डेली के 3 से 4 घंटे निकालता था, जो मेरे पास अवेलेबल थे. कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए. बस ये था कि उसको रेगुलराइज करना था. द ओनली थिंग आई हैव टू डू, कि बी कंसिस्टेंट विद माई स्टडीज. और कभी अगर बहुत प्रेशर है जॉब का, कभी एक दिन निकल जाता है ऐसा, तो एटलीस्ट मैं 1 घंटा दे दूँ. दैट वॉज माई Hmm. स्ट्रेटेजी फॉर दिस एग्जाम, एंड Right. दैट वर्क.
So in that also, like, you prioritize okay, if like 4 hours are there, 2 to 3 I'll give to merit section, only one I'll give to non-merit. Or like if I have only 1 hour, so I'll dedicate that to this particular subject where I'm weak at. तो आपने वो कैसे कैटेगराइजेशन आपने किया? मैम मेरा मेजर फोकस जो था ना वो मैथ्स, अगर नॉन मेरिट में देखा जाए तो क्वांट और रीजनिंग के ऊपर ही था, बिकॉज बाकी मुझे लगा कि मुझे खुद का कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा, बिकॉज पहले भी एग्जाम्स का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी है। तो क्वांट और रीजनिंग ऐसा था कि जिसमें इतना मेरा टच नहीं था। ऑब्वियसली सी सेट वगैरह में काम आता है यूपीएससी के, बट वो 1 साल के बाद एग्जाम होता है और वहाँ भी आपके पास इंग्लिश का एक बहुत बड़ा एज होता है। सो यू हैव द चॉइस। तो उस पर थोड़ा सा काम किया था मैंने, रेगुलरली काम करता था, बिकॉज वो मेरे एक तरह से एवरेज पोर्शन था, तो उसमें मुझे रिस्क नहीं लेना था। बाकी जो है, बाकी मैंने मेजर अपना जो टाइम है ना वो मेरिट सेक्शन को ही दिया था, और एक इंटीग्रेटेड तरीके से प्रिपेयर किया था, प्री एंड मेन कंबाइंड। ऐसा मैंने स्ट्रेटेजाइज किया था कि मेरे को एक एग्जाम के लिए एक ही स्ट्रेटेजी से प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको अलग अलग साइलोज में रखूं, प्री अलग है, मेन अलग है, ऑब्जेक्टिव अलग है, डिस्क्रिप्टिव अलग है, ऐसा नहीं करा था। तो मेरा लाइक प्री से पहले ही मेरा अराउंड 70% सिलेबस कंप्लीट था ऑलरेडी। Right. And then it's a very important key takeaway for the aspirants, because what they usually do, they think that I'll prepare for phase two only when I'll clear phase one. But between phase one and phase two, you would not get much of the time. 10 to 15 days, even institute. I don't know why, but now it takes, even after being an online examination, at least 10 to 15 days to get the result, to declare the result. And after that, you just have 10 to 15 days to 10 to 12 days, in fact, to appear for phase two. So, उस time में you will not be able to, एज अ बिगनर एटलीस्ट यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर फेज टू। तो अगर आप पहले से ही इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन रखेंगे, बिकॉज द एम इज टू एंड अप इनटू द फाइनल मेरिट लिस्ट, दैट विल हेल्प यू। ऑलराइट। एंड ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेज टू। ठीक है, जैसे आपने फेज वन क्लियर किया, सो फर्स्ट वन थिंग आई वांट टू आस्क, इवन दो बिकॉज यू ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, यू हैड एन इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, so after phase one, did you waited that you will prepare after the result, or you from the second day only you just started preparing for the means? नहीं, मैंने 1 या 2 दिन का ब्रेक लिया था बस, ओनली 1 और 2 डे ब्रेक। उसके बाद आई स्टार्टेड विद द फेज टू प्रिपरेशन, एंड फॉर दैट डेली आंसर राइटिंग एंड होल स्टफ, Right. मैंने ब्रेक So नहीं करा। before, again, you earlier you had experience of UPSC and state PCS where you have to, definitely descriptive writing is there, but you have to write that. But here Yeah. now you have to switch that to the typing mode. So do you think that's a difficulty? उससे पहले एक और चीज, means adding to that question, when you have the habit of writing an answer and then you switch to typing, so does that have, any effect in your thinking capacity also as a aspirant, or like it's remains same only, it's just the difference of typing and writing? आंसरिंग द सेकंड पार्ट फर्स्ट, ऐसा कुछ डिफिकल्टी नहीं है, बिकॉज ऑल यू हैव टू राइट, जैसे वहां पे अपना पेन पेपर से लिखना है, यहाँ टाइप करके लिखना है, बस हम्म। यही एक है। हाँ, सिर्फ इतना है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम टाइप कर रहा है तो हम्म। ऑब्वियसली वो चैलेंज फेस करेगा, बट अगर आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करा है तो ये कोई चैलेंज नहीं रहता है। और हम्म। सेकेंड थिंग इज, हाँ, स्विच करना एक चैलेंज रहता है स्टार्टिंग में, कि क्योंकि अब हम हैबिचुअल हो गए होते हैं उस चीज़ के, और ऑब्वियसली आपको एक टाइम लिमिट भी मेंटेन करना है, कितने हम्म। वर्ड्स कितने मिनट्स में लिखने हैं, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसका कोई और इलाज नहीं है, लाइक शॉर्टकट नहीं है राइट। उसका। राइट। तो जैसे इस बार क्या हुआ था इंग्लिश में, एकदम से एक सरप्राइज था कि लाइक 500 वर्ड्स में यू हैव टू राइट, राइट? सो सच सरप्राइजेस इन एग्जामिनेशन, हाउ इफ लाइक अगर किसी ने अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो उस मोमेंट में उसको कैसे स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए, या ये कोई भी कितना भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाए उसके लिए एक शॉकिंग मोमेंट होता ही होता है, एंड यू हैव टू लाइक गैदर योर करेज एंड देन यू हैव टू राइट, एनी हाउ यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट? English, according to me, is the most like easy and easy to score, and the most like you, आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो इजीली बहुत पहले से। तो ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत हाई रहता है। तो अगर आपको सच में एग्जाम क्लियर करना है ना, तो ये सब एक एक पेपर है जिसपे आप पूरी तरह से लाइक डिपेंड कर सकते हो। ये आपको सपोर्ट करेगा अगर आप उसमें मेहनत कर रहे हो तो। सो मेरा इसमें ये था कि हाँ, प्रैक्टिस करा था पहले से, और लकीली क्या हुआ कि जहाँ पे वो ऐसे का टॉपिक जो आपने मेंशन किया, 500 समथिंग वर्ड्स का आया था, तो वो दैट वाज द रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन रूरल डेवलपमेंट आया था। तो ऑल राइट। कंटेंट का आई वाज नॉट वरिंग अबाउट कंटेंट, तो मेरा वर्ड लिमिट तो 500 क्रॉस हो गया था इजीली, 512 लिखा था मैंने या शायद 15। तो राइट। उसका इशू था सिर्फ, हाँ, इसमें मेरा जो, हाँ, जो लॉन्ग टर्म मेरा प्रिपरेशन रहा है उसमें ये था कि आई हैव टू बी टेक्निकली करेक्ट। मेरे को मतलब बहुत फ्लावरी कंटेंट नहीं चाहिए या डेटा फैक्ट्स नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि आपके एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड वो आजकल सुना ही है, बिकॉज की सॉफ्टवेयर से चेकिंग होती है, नो वन नोज। तो
अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स कटने वाले हैं, बिकॉज हम ग्रामरली में देखते हैं कि कितने एरर निकालता है वो 1 मिनट में। ट्रू। तो इसमें फंडा यही था कि आपको शॉर्ट सेंटेंसेस लिखने, बिल्कुल सिंपल लिखने, और अगर आपको फिगर्स लिखने भी है ना, मतलब कि डिजिट्स वाला मत यूज करो, आप वर्ड्स में लिखो। Like ओके। don't write 7575, write 775 in 2 years. SEVN, या। Yes, yes, yes. तो ऐसा करना है, बिल्कुल सिंपल रखना है, पैराग्राफ यूनिफॉर्म रखने। और लेटर तो बहुत इजी है ना, क्योंकि उसमें तो आपको पहले से ही आपका आधे से ज्यादा पोर्शन तो या। वो सैल्यूटेशंस एंड एड्रेस वगैरह का आ जाता है, फॉर्मेट का आ जाता है। हम्म। बाकी बॉडी उसकी उतनी ज्यादा टफ नहीं है। और रही बात प्रेसे की, तो वो तो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन प्रैक्टिस से ही आएगा। Yeah, true, true. Yes. Because in Prezi, you would have to write in your own words. So that Yes, requires yes. some practice. Practice, And practice. so don't be casual about English. That is what the main essence we can get from it. One thing Because, to mention, like I use Grammarly exhaustively. मैंने hmm, Grammarly काफी यूज किया है, मैं रोज प्रैक्टिस करता था और उसमें रोज इवेलुएट करता था खुद को कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है। सो दैट वाज फॉर मी। right, true. Because ultimately, when you're giving descriptive English and you're committing grammatical errors, so definitely that is not going to add up to the marks. So at least for English section, you have to be very specific. And for that, sir, he had the support from Grammarly. Grammarly is a website जहाँ पे whenever if you copy paste your content or even if you type about it, there they will check all the grammatical errors you have made. So if you are a beginner and you think you are average on in English, then in that case you can use it and get the benefit out of it. All right. And now sir, if you talk about ESI and ARD, for that now because time is very less, so definitely we cannot uh, have the intensive revision of all the chapters. So did you then specifically for some chapters you did कि ये चीजें हैं ये मैं अच्छे से इसको रिवाइज कर देता हूँ, या you had that wholesome coverage only? अगेन सेइंग ESI ARD को मैंने अलग अलग प्रिपेयर नहीं किया था। Hmm. मेरे को जस्ट टॉपिक्स प्रिपेयर करने थे, वो जो भी हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं उस टाइम के या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मैंने ESI ARD को एक ही, क्योंकि पेपर तो एक ही है ना, तो True. आप अलग अलग करके तो अपना काम बढ़ा रहे हो। Hmm. सर आई डिड की मैंने 30 टेम्पलेट्स के अराउंड बना रखे थे ऑलरेडी, विच आई यूज्ड इन इंट्रो एंड कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। थोड़ा थोड़ा सा Hmm. ट्वीक करके कि कुछ भी लिखा है तो उसका इंट्रो और कंक्लूजन मेरे पास रेडी था। एंड फॉर फॉर्दर मैंने क्या करा था कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के 8-10 पॉइंट्स बना के रखे हुए थे, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन, फूड Hmm. सिक्योरिटी, फूड इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट। तो ये सब चीज़ का रेडी था। और बाकी रही फॉर्डर की बात, हम इतना पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, वो कहीं ना कहीं तो काम आएगा ना। तो दैट वाज द Hmm. like my strategy for this paper. True. So as you said that you have prepared some of the templates और आपने जहाँ पे भी as per the demand of the question आपने ऐड करा, तो जैसे आपने कुछ introductions बनाए, so which sort of aspirant are you? Some people they start off with some philosophical details, some they just start off with the definition, some they start off with the data facts. तो आप इसमें से कौन से वाले aspirant हो? मैम डेटा फैक्ट हो सकता है, बट फिलोसफी यहाँ बिल्कुल भी मेरे हिसाब से काम नहीं आ सकती है, बिकॉज वो काफ़ी, इस बार तो उन्होंने 5-5 मार्क्स के भी बाइफर करके पूछा था, लाइक कि एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, उसमें फाइव हम्म। फाइव मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे थे। तो ऐसे वो हम्म। फिलोसफी वाले के लिए टाइम नहीं है। अब वो हम्म। ऑन द मनी वाली बात है कि आपको जो पूछा है आप उसके एक इंट्रो दो, चाहे वो हम्म। डेटा से दो चाहे आप डेफिनेशन से दो। उसके हम्म। बाद अगेन बॉडी विद पॉइंट्स। और हाँ, उसमें क्या कर रहा था मैंने, जैसे जैसे जो बॉडी में सब हेड्स है ना, वो कैपिटल में लिखे थे, और हम्म। उसको क्लियरली मतलब कि किया था कि वो बिल्कुल दिख डिफरेंशिएशन जाए। पता हाँ, चले। हाँ, हम्म। बिल्कुल। एंड अगेन विद आप एक लाइन स्किप कर सकते हो, अगर कर सकते हो, मुझे एक्चुअली याद भी नहीं है। तो हम्म। देन अगेन कंक्लूजन पहले से रेडी था, वो उसमें फिक्स करके तो सही हो गया था। Right, true. That's true. Because when you pen and paper में तो it's easy. You can make flow chart, you can highlight things, but that is not what you can do when it's an online examination. So there, how you can differentiate, how you can show the pointers by typing in capital letters. Maybe if you want to highlight something, you cannot underline. You can just use caps lock and write everything in capital to make that highlight. Definitely, it's a good strategy. ठीक है. And what about the word limit? How do you means according to you how much important it is to stick to the word limit, or if plus and minus would also be fine? मैम मेरा जो 4 क्वेश्चंस का जो एक्सपीरियंस है, वो सिर्फ एक क्वेश्चन में थोड़ा सफ़र किया था, जैसे कि जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें मेरा नॉलेज लिमिटेड था। तो मैं अराउंड 350 के अराउंड लिख पाया था 600 में से। बाकी मेरा वर्ड लिमिट वाज गुड, लाइक जो अनदर 600 वर्ड्स का क्वेश्चन था उसका मैंने 580 प्लस लिखा था। एंड बाकी 400 वर्ड्स के थे, उसमें 350 380 लिखा था। सो All right. मेरे लिए तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ।
राइट। एडिंग टू दिस, वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क कि जैसे सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन ईएसआई में पूछे जाते हैं, काफी करंट अफेयर्स बेस्ड दे आर नॉट दैट मच स्टैटिक नाउ। इनफैक्ट कभी रहे नहीं है, एआरडी में ज्यादा स्टैटिक रहे हैं। अगर हम्म। कोई यूपीएससी बैकग्राउंड का है एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस नाबार्ड एग्जामिनेशन, would that help whatever descriptive that they have practiced, would that help in NABARD, or they have to tweak a little bit of their preparation as per the syllabus as well as the requirement of NABARD examination? What you have to say about this? मैम हेल्प तो है, काफ़ी हेल्प होती है। इनफैक्ट जो ईएसआई का आपका पेपर है, उसमें Hmm. तो आपको लाइक स्टैटिक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जस्ट करंट अफेयर पढ़ो, क्योंकि आप सब कुछ जानते हो पहले से। Hmm. लाइक आपको सिर्फ फिगर्स पढ़ने हैं, डेटा पढ़ना है, नया डेटा जो आया है, लाइक Hmm. सर्वे एंड बजट, वो सब पढ़ना है, और जो भी आपके सर्कुलर वगैरह आते हैं। और इस पेपर में सबसे बड़ा हेल्प है वो। और हाँ, आंसर राइटिंग का चाहे एआरडी हो चाहे ईएसआई हो, वो हेल्प तो रहता है, क्योंकि ये पहले से मैंने कहा वो इंट्रो एंड कंक्लूजन वाला कॉन्सेप्ट तो वहीं से आया है। Hmm. तो बाकी पॉइंटर्स बनाना एंड ऑल दैट थिंग, वो सब वहीं से आया है। तो Right. डेफिनेटली ये हेल्प करता है काफ़ी। Right. All right. So after phase two, then like were you a little confident that you're going to make it to the interview, or you were, little bit skeptical and waited for the result first? मैम मिक्स अप बोथ एक्चुअली। इस एग्जाम का काफ़ी एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम था। सो हाँ, कभी लगता था कि अच्छा कर दिया है, कभी लगता था कि यार लेट्स सी, होगा तो ठीक है, नहीं तो लेट्स सी। तो ऐसा वाला कुछ था। बाकी क्लियरली मैं बता नहीं सकता अभी कि क्या था। Right, true. And then the result was out. The next was to prepare for the interview. First of all, like how many days or months did you get for the interview, and then how did you prepare next? माई इंटरव्यू वॉज ऑन 2nd of Feb। Mm, तो रफली एक महीना मिल गया था। एंड उसके बाद मैंने 2-3 दिन का ब्रेक लिया था, ऑब्वियसली रिजल्ट mm, आने के बाद, कि लेट्स थोड़ा सा रेस्ट करके फिर से स्टार्ट होते हैं। mm, तो उसमें काफ़ी प्रिपेयर किया फिर, लाइक ऑन द एकेडमिक साइड भी अपना प्रोफाइल, पूरा खुद को जानने के बारे में अपना बैकग्राउंड प्रिपेयर करना। और जो फिर पढ़ने वाला पोर्शन है, जैसे कि एनुअल रिपोर्ट, एसएफपी, पीएलपी, mm, नाबार्ड वेबसाइट, तो हर सोर्स से हेल्प ली है, अलग अलग जगह पे मॉक्स दिए हैं। सो एक प्रोसेस रहा कि जो थ्रू चलता रहा, बिकॉज मॉक ऐसा है ना मैम, जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो चलता रहे तो ज़्यादा बेटर लगता है। अदरवाइज आप स्टैंड स्टिल हो जाओ ना, तो ज़्यादा नर्वसनेस फील होती है और फिर परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। सो ऐसा कुछ उसमें मेरी स्ट्रेटेजी थी कि लाइक मैं true, रोज़ प्रिपेयर कर रहा था, रोज़ इम्प्रूव कर रहा था उसमें। true. All right. And then how did your real interview go? Was that on the line of your preparation, or there were, some new things that you observed? Ki, acha, like this was something I missed in my preparation part, and it can help the future aspirant to think about it. It lasted for around 40 minutes, and they asked me about 15 to 16 questions. And I would say कि 70 to 80% was related to profile only. ऐसा कुछ नहीं Okay. था जो कि बाहर से पूछा गया। एंड कुछ एक दो रैंडम क्वेश्चन थे, फॉर एग्जांपल एसएचजी, देयर रोल इन क्रेडिट, अदर देन Mm, क्रेडिट, ऐसा कुछ क्वेश्चन थे, ब्लू रेवोल्यूशन। बाकी mm, सारे क्वेश्चन प्रोफाइल से थे। हाउ इज योर जॉब, व्हाट आर योर ड्यूटीज, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर कोऑपरेटिव्स, mm, एंड हाउ इज नबार्ड हेल्पिंग विद कोऑपरेटिव्स। तो mm, ये सब क्वेश्चन थे, एक्सपेक्टेड लाइन पे थे, पढ़ के गया था। तो mm. इंटरव्यू काफी अच्छा हुआ था। Right. अच्छा, इसमें ना एक और क्वेश्चन मुझे आया, because usually when I take workshop, this is the most common doubt which aspirant have. Although I assure them, they say that I'm 29, 30 years of age. That will be my like last attempt, that will be there, right? And the most common query that they have कि ऐसा तो नहीं, because I am like near 30, they would not prefer me. They would prefer the youngsters who are coming. Although I said that if they are inviting you in the application and they are saying that we are okay, that this age range is fine, then you are definitely, you will be measured on the same scale only. But still, like, because you are on that stage, and if any aspirant is watching that, what would you say to have that confidence कि it's not about the age, it's about, your experiences and the contribution that you can do to the organization? डेफिनेटली। तो मैम इसमें यही बात, एक बात थी कि ठीक है, लाइक आई एम ऑल्सो 30 years old, एंड दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट एज वाइज। सो इसमें क्या था कि मेरा जो थॉट प्रोसेस यही था कि ठीक है, हाँ फ्रेशर्स को मोल्ड करना इजी होता है, वो लंबा टाइम उनके पास एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करने के लिए। बट मैं भी एक्सपीरियंसड हूँ, मुझे अपना काम पता है, एक रिलेटेड फील्ड है। और अगर आपने अपना काम अच्छे से किया है, आपको पता है, तो यू कैन प्रूव टू बी एन एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इस तरह से भी सोचिए। ठीक है, आप आपको खुद को जाके प्रूव करना है कि मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट रहूंगा, और दे विल थिंक अकॉर्डिंगली। अब जैसा उनको बताओगे इंटरव्यू में, और ऑब्वियसली वो वैसे ही डिसीजन लेंगे। True, that's true. It's not about age, it's about how you portray that, how you can be an asset, be it whatever age you are in.
All right. Okay. So, after did you found your main interview to be like satisfactory, or after that you had some doubts? ना एक हर एस्पिरेंट अपने आप को critically analyze करने लग जाता है. Maybe ये, maybe वो. How was the things for you? मैम मुझे लगा काफ़ी अच्छा लगा एक्चुअली। उसके बाद नबार्ड के कुछ लोग मिले थे, एंड नबार्ड वो जो जहाँ मैं इंटरव्यू देने गया था आरओ में, वहाँ भी काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई थी। तो सबको जब सबने सुना तो उन्होंने कहा काफ़ी अच्छा है, एक्सपेक्टेड है। अगर आपके मेंस के मार्क्स अच्छे हैं तो इंटरव्यू इज़ गुड, आपका इंटरव्यू अच्छा। और मुझे भी लगा कि लाइक अगर 15-16 क्वेश्चन पूछे थे तो सिर्फ एक आध क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा फंबल किया था, बाकी तो सारा इंटरव्यू सही गया था, स्मूथ गया था। तो Right. आई वॉज और जब वो होपफुल। और जब आपने जैसे फंबल एक दो उसमें हुआ क्वेश्चंस में, तो लाइक डिड यू हैड फीलिंग शिट आई मेस्ड अप एंड मे बी अब आगे और ज्यादा खराब हो जाएगा, या आपने उसको अपने आप को कैसे उस समय अपने आप को हैंडल करा कि चलो ठीक है ये हो गया, नाउ लेट्स फोकस ऑन नेक्स्ट? हाँ मैम, वो हुआ था बिल्कुल। ये दिमाग में बिल्कुल आया था कि यार कुछ हो गया है, तो मैं डिरेल हो गया हूँ एक्चुअली। तो बट हाँ, ये है कि आप उस टाइम थोड़ा सा कंपोजर दिखाइए, थोड़ी सी कामनेस के साथ, यू टेक 1 or 2 सेकंड एक्स्ट्रा और वापस आइए अपने ट्रैक पे। बिकॉज क्योंकि एक क्वेश्चन खराब खराब भी नहीं बोल सकते, जस्ट लाइक हम्म। अगर वो एग्जैक्ट डेफिनेशन आपके दिमाग से एग्जैक्टली। नहीं आ रही है तो नॉट टू वरी अबाउट, क्योंकि वो जस्ट वो आपको जानना चाहते हैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। ऐसा नहीं है कि आपको होली सोली वो नॉलेज के बेस पे ही टेस्ट कर रहे हैं। हम्म। सो तो उसको उस टाइम आपको आपको कंपोजर रखना है और वापस से अपने ट्रैक पे वापस आना है। दैट वाज द केस। True. Right. Okay. And then finally the result came and you have made to the NABARD, right? So how is it feeling? Like, how is that current feeling? Because this exam was something where, you had nothing to lose. You already were doing well. But then you made it, and that too in your very first attempt. How's that feeling? द फीलिंग इज रियली रियली गुड एक्चुअली। आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हो, मेहनत करते हो, एंड एक्स्ट्रा टाइम भी निकाल रहे हो, टाइम चुरा रहे हो एक्चुअली फॉर प्रिपेयरिंग द एग्जाम। तो बहुत अच्छा लगता है इनफैक्ट। हाँ, एक जॉब की तरह से देखेगा, अपग्रेड देखे तो अच्छा है ये। बट आप अगर किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हो और वो अचीव कर रहे हो, उसकी एक अलग खुशी होती है। सो True. दिस वाज वन ऑफ दैट। राइट, ट्रू, दैट वो पर्सनल एक सेटिस्फैक्शन दैट यू डेडिकेटेड योर टाइम, या जैसे आपकी बातों में कहा कि चुराया टाइम चुराया और उसने रिजल्ट भी दिया। सो डेफिनेटली नॉट फ्रॉम करियर प्रोस्पेक्ट बट एट अ इंडिविजुअल लेवल इट्स वेरी satisfactory when you get the result you were working hard for. All right. Okay, so that was all about Mr. Arun's journey, and I'm definitely sure it is going to help a lot of aspirants to strategize a plan for themselves and clearing the NABARD grade examination in this very attempt. So at the end, we would like you to say something to the aspirants who are preparing for this examination and help them to achieve their goal. हाँ मैम, मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। आई हैव सम सजेशंस लाइक लिमिट योर रिसोर्सेज। डू नॉट यूज मोर देन 2 resources फ्रॉम द सेम टॉपिक। फॉर स्कीम पार्ट आई यूज्ड डेलिबरेटली, आई यूज 3-4 sources। बट वो इसीलिए बिकॉज कुछ मिस ना हो जाए, बिकॉज आपको पता है ना स्कीम में 3-4 ऑप्शन आते हैं, आपको एक भी पता नहीं है तो आपका पूरा आंसर क्वेश्चन सफर कर सकता है। सो Hmm. फॉर अदर थिंग्स आई यूज एट मोस्ट 2 sources, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो क्लटर बन जाएगा काफी ज्यादा और अब वो फोमो तो फिर क्रिएट होना ही है। एंड देन रिवीजन इज द की। जब सब कहते हैं और ये है, इट Hmm. मैटर्स एक्चुअली। एंड देन कम्स द दैट प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जाम इज एन इंटीग्रेटेड वन। लाइक प्रिपेयर विद फॉर प्री एंड मेन इन इंटीग्रेटेड मैनर, नॉट इन Individual. साइलोस, बिकॉज Hmm. इससे आपकी टाइम और एनर्जी दोनों सेव होगी और फोकस तरीके से लगेगी और आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। Then comes that be consistent with your preparation. हाँ, छोटे मोटे breaks आएंगे। There will be times when you feel frustrated, that overwhelmed with the syllabus and topics, काफी सारे sources हैं और काफी सारे factors होते हैं, personal life भी Hmm. होती है and all the thing, तो आप frustrate होगे time, but this is, you have to accept that this is part and parcel of the preparation only. So Yeah. इसको accept करो, take a break, have an outing and come back stronger. बस यही है, and prepare well. And last thing is that have faith in God and believe in yourself. You will definitely make it. True. That's really true. Believe in yourself, and definitely things will be in your favor. So thank you, sir, for joining with us again, and we wish you all the very best for your future. Thank you, ma'am.